Hi, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. So, today we are going to start with the new topic Yoga and Vedanta. So, it comes under the Indian philosophy. We will start with this. Yoga means union. The spiritual union of individual soul, Atma, with the Supreme Soul, Brahma. So, it's a union of Atma to Brahma, that is Paramatma. So, yoga focus, it provides a practical path and structured methodology to achieve this union. ये एक प्रैक्टिकल पाथ और स्ट्रक्चर्ड मेथोलॉजी प्रोवाइड कराता है ये यूनियन को अचीव करने के लिए, जो आत्मा का परमात्मा से जो है मिलन है वो हमें योगा के थ्रू जो है वो प्रोवाइड होता है. सो वेदांता इज बेसिकली द एंड ऑफ वेदास, वेद प्लस आंता. वेदांता को हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं. So, representing the culmination of Vedic wisdom primarily found in Upanishad. So, it focus and provide the philosophical foundation and inquiry into the nature of ultimate reality. So, inquiry of ultimate reality, its main focus. Core ideas of both the philosophies are they aim to answer life's fundamental question and provide a framework for attaining the highest wisdom and spiritual realization. ये एक जो है बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है टू अटेन द हाईएस्ट विजडम एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. बोथ फिलॉसफीज दे हैव देयर एम to provide the highest wisdom and spiritual realization. The path of yoga, systematizing the practice. Founder is Maharishi Patanjali, who systemized yoga philosophy. So, the primary text of yoga philosophy is Yoga Sutra. This is the first and foremost systematic presentation of yoga in both theory and practice. So, this Yoga Sutra is the first and foremost सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है योगा की. उसके बाद जो है कई सारी कमेंट्रीज हैं इम्पॉर्टेंट, जो है वकासपति मिश्राज की तत्वावसरादि एंड वासियाज की योगा भाष्या. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट दिस योगा सूत्रा it has both the theory and practice part. And what is the critical connection between Sankhya philosophy and yoga philosophy? That Sankhya is the theory and yoga is the practice. Basically Sankhya philosophy जो है वो एक theory provide कराती है और योगा जो है एक practical जो है formulation देता है. Sankhya basically जो है वो emphasize करता है attainment of knowledge of the self through meditation. ज्ञान को प्राप्त करना, सेल्फ के बारे में जो ज्ञान है वो मेडिटेशन के थ्रू प्राप्त करना, और जो योगा है ये हमारा प्रैक्टिकल पाथ देता है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए. सो इट गिव्स द प्रैक्टिकल पाथ एंड इट गिव्स द थ्योरी पार्ट. सो दिस इज द कनेक्शन ऑफ सांख्या टू योगा. द आर्किटेक्चर ऑफ योग सूत्राज. Patanjali organized his sutras into 4 distinct parts or padas that guide the practitioner from nature of mind to ultimate freedom. So, first one is Samadhi Pada. Samadhi Pada, it deals with the nature and method of yoga, including concept of Chitta, the internal organ mind stuff. Chitta is basically very important part of yoga philosophy, because everything that happens to this Chitta, for example, the modification in Chitta, the distraction in Chitta that cause the Kaleshas. So, this is very important part that it deals with the nature and method of yoga.
एंड सेकेंड वन इज साधना पदा. इट एक्सप्लेन्स द कॉजेज ऑफ सफरिंग. जो भी सफरिंग से, जो भी प्रॉब्लम से, जितनी भी कलेशाज हैं, ह्यूमन बॉन्डेज है एंड लॉ ऑफ कर्मा है, दिस इज द प्रॉब्लम सेक्शन. साधना पदा जो है ये हमारा प्रॉब्लम सेक्शन से रिलेटेड है. तीसरा जो है वो हमारा विभूति पदा है. बेसिकली इट डील्स विद द हाउ द प्रैक्टिस ऑफ योगा हेल्प्स इन अचीविंग सुप्रा नॉर्मल पावर. सिद्धीज प्राप्त करते हैं जो. And fourth one is the ultimate aim of yoga, that is the Kevalya Pada, describes the nature of final liberation and spiritual union with the Supreme Self. This is the solution or ultimate goal. So these are the 4 parts of Yoga Sutra. Now the foundation of practice, the 8-fold path, that is known as Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga. तो पहला पार्ट क्या है इसका? यामा. यामा में बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 5 सब पार्ट, दैट इज अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. सो यामा जो है वो बेसिकली डील करता है हमारा कंट्रोल ऑफ बॉडी, माइंड, स्पीच. MBS, माइंड, बॉडी, स्पीच. So the 5 moral restraints are, first one is ahimsa, non-violence. नाम से इसका क्लियर होता है अहिंसा. सत्य, ट्रूथफुलनेस इन थॉट एंड स्पीच. असत्य, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना. ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, कंट्रोल ऑफ सेंसेस टुवर्ड हेवनली प्लेजर्स. एंड अपरिग्रह, दैट इज डिटैचमेंट टू द लग्जरी आइटम्स, नॉन पॉजिटिवनेस, नॉट एस्पायरिंग फॉर अननेसेसरी लैविश थिंग. सेकेंड वन इज नियामा. नियामा, इसके भी 5 जो हैं वो सब पॉइंट्स हैं. पहला शौच, संतोष, तापा, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. सो नियामा जो है हमारा रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट है. दीज आर द प्रिंसिपल्स, रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट. शौच, क्लीनलीनेस. संतोष, कंटेंटमेंट विद व्हाट वन हैज़, जो खुद के पास है उसी में संतोष रहना, दूसरे से कंपेयर नहीं करना. और तापा, ऑस्टेरिटी, द पावर ऑफ टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता. स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी. एंड ईश्वर प्रणिधान, दैट इज सरेंडर टू अ हायर पावर गॉड. ईश्वर को जो है सरेंडर कर देना, उनको हायर अथॉरिटी मानना. कंटिन्यूएशन टू दैट अष्टांग योगा. थर्ड वन इज आसना. आसना रिलेटेड टू बॉडी पोस्चर टू एड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चित्ता. चित्ता को जो है उसको कंट्रोल में करने के लिए ये बॉडी पोस्चर हैं. बेसिकली हम जो है ये फिजिकल एक्सरसाइज को ही लोग जो है योगा बोलते हैं, बट दिस इज वन स्टेप और वन एस्पेक्ट ऑफ योगा टू हैव दैट फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ हैविंग दैट बॉडीली पोस्चर. देन फोर्थ वन इज प्राणायामा, दैट इज द कंट्रोल ऑफ ब्रीथ, इनहेल एक्सेल करना to remain focused. Fifth one is pratyahara. Pratyahara is basically the controlling power to withdrawal of the sense organ from worldly object and pleasure. That is the controlling power from worldly object is pratyahara. This is very important one. Then dharana is the concentration, keeping the mind focused on single point. एक ही point पे जो है अपने mind को केंद्रित करना is dharana. Then seventh one is dhyana. Dhyana is basically the meditation part. It is sustained concentration on an object for longer time. बहुत देर समय के लिए जो है अपने जो है concentration को एक ही जगह पे रखना for longer period of time. ध्याना. तो लोगों को इसी में confusion होता है. प्रत्याहारा बेसिकली पहले अपने आप को जो कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने के बाद एक पॉइंट पे कंसंट्रेशन करना, फिर उस कंसंट्रेशन को लॉन्गर पीरियड के लिए रखना, तो वो ध्यान लगाना हुआ. ठीक है. देन एट्थ वन इज समाधि. समाधि, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ यूनियन. सो द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर नेगेटेड एंड द ट्रू नेचर ऑफ चित्ता इज रियलाइज्ड. समाधि, दिस इज द फाइनल स्टेज, और इसमें भी जो है 2 टाइप्स की होती है. एक होती है कॉन्शियस समाधि और एक होती है सुप्रा कॉन्शियस समाधि. इसमें
उसमें जो है समाधि में नोन होता है, मतलब थोड़ा जो है वो फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट होता है, बट बेसिकली सुप्रा में तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके जो है वो पूरा एकदम ही सुप्रा कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं। नाउ Vedanta. Pillar second, the path of Vedanta. Vedanta is the inquiry into ultimate reality. So its etymology, Vedanta means the end of Vedas or culmination of Vedic teaching. It refers to the Upanishad or Uttar Mimamsa. Vedanta is concerned with the Gyan Kand, that is the knowledge section. ये knowledge section से deal करता है वेदांता हमारा, of Vedas. ठीक है, focusing on philosophical and speculative inquiry. So it is more of a knowledge type, ज्ञान कांड को रिफर कर रहा है. एंड व्हाट आर द की डिस्टिंक्शन? मीमांसा. मीमांसा दो तरीके का है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा. उत्तर मीमांसा को हम वेदांता कहते हैं. ठीक है, पूर्व मीमांसा जो है वो एक फॉर्मल इंक्वायरी है जो कर्म कांड से रिलेटेड है, जो रिचुअलिस्टिक साइड होता है वैदिक टीचिंग का. जो भी रिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं, जो भी कर्म कांड होते हैं, वो बेसिकली पूर्व मीमांसा से रिलेटेड है. और उत्तर मीमांसा जो लेटर इंक्वायरी है, बाद में जो इंक्वायरी जो लेटर वैदिक पीरियड का वो है, वो कंसर्न विद फिलोसफिकल एस्पेक्ट एंड नेचर ऑफ रियलिटी. सो दे बोथ डील्स विद देयर ओन एस्पेक्ट्स. सो प्राइमरी एम क्या है? बेसिकली इनका एम जो है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी. दोनों का एम तो एक ही है कि अल्टीमेट रियलिटी को जो है वो डिटरमाइन करे और उसका जो है एक एक्सप्लेनेशन दे वर्ल्ड को कि ये कैसा दिखता है. सो बोथ हैव द सिमिलर एम. एंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ वेदांता इज ब्रह्मा एंड आत्मा. ब्रह्मा हमने इसी की बात करी थी उसमें योगा में कि इनका जो यूनियन है ब्रह्मा मतलब परमात्मा का आत्मा से, वो यूनियन जो है वो योगा के थ्रू है. सो दैट इज़ वाई ये दोनों फिलॉसफी को एक साथ हम लोग पढ़ रहे हैं. ब्रह्मा एक अल्टीमेट रियलिटी है. ठीक है. द उपनिषद स्पीक ऑफ टू फॉर्म ऑफ ब्रह्मा. उपनिषद कहता है ब्रह्मा के दो फॉर्म, एक हायर और दूसरा लोअर. हायर को हम परा कहते हैं और लोअर को हम अपरा कहते हैं. सो जो हायर ब्रह्मा है वो अनमैनिफेस्ट है, फॉर्मलेस है, इमॉर्टल है, ट्रांसेंडल है. ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल थिंग. एंड लोअर ब्रह्मा जो है जिसको हम अपारा कहते हैं, ये फॉर्म्ड है, मोर्टल है, मैनिफेस्ट है, एम्पेरिकल है. सो दिस इज रिलेटेड टू द फिजिकल वर्ल्ड एंड दिस इज रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. एंड आत्मा, द इनर सेल्फ, द साइकिक प्रिंसिपल एंड द इनर सेल्फ, खुद के अंदर जो है इनर सेल्फ, इट इज़ द यूनिवर्सल परमानेंट लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट रिसाइड्स इन आवर हार्ट. सो जैसे कि आपको ये जो है पिक्चर इमेज से शो हो रहा है. सो द ग्रेट इक्वेशन ब्रह्मा इज आत्मा एंड द यूनिवर्सल स्पिरिट इज द सेल्फ इन अ मैन. और सगुना ब्रह्मा कौन है? ये क्वालिफाइड ब्राह्मण है जो कंसीव करते हैं कि गॉड द क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर है इस वर्ल्ड का. नाउ द वेदांता टूल किट, द 6 pramanas, means of knowledge. This is very important part कि what are the means of knowledge. Basically this is the epistemology of Vedantic philosophy. It has 6 authoritative sources of acquiring knowledge. So पहला है प्रत्यक्ष. प्रत्यक्ष that is perception, जो हमें दिख रहा है, जो हम जो है देख के डायरेक्ट सेंसरी एंड इंट्यूशनल उससे जो है हम नॉलेज को गेन करेंगे, दैट इज प्रत्यक्ष परसेप्शन जिसको हम बोलते हैं. सेकेंड इज अनुमाना, जो हम इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं. थर्ड वन इज अनुपलब्धि, नॉन परसेप्शन और एब्सेंस ऑफ समथिंग. देन उपमा, उपमना, ये हम किसी चीज़ के बीच में जो है वो कंपैरिजन कर रहे हूँ. फिफ्थ इज शब्दा एंड सिक्स्थ इज अर्थापत्ति, postulation or derivation from circumstances. Shabda, verbal and scriptural testimony, primarily the Vedas.
ठीक है। अब इसमें क्या हमने जो है योगा फिलॉसफी के जो प्रमाणा है वो बेसिकली हमारा सेम है सांख्य फिलॉसफी से, जो इंक्लूड करता है प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द, दैट इज द परसेप्शन, इन्फरेंस एंड वर्बल टेस्टिमनीज। ये जो है ये हमारे 3 प्रमाणाज है योगा फिलॉसफी के, एंड 6 प्रमाणाज हैं हमारे वेदांता फिलॉसफी के, जिसमें हमारा ये अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, उपमा। नाउ द स्पेक्ट्रम ऑफ रियलिटी, 3 मेजर स्कूल ऑफ वेदांता। दीज आर द 3 मेजर स्कूल, और भी स्कूल है वेदांता के, लेकिन दीज आर द 3 मेजर स्कूल ऑफ वेदांता। पहला है अद्वैत वेदांता। अद्वैत वेदांता इज नॉन ड्यूअलिज्म। अद्वैत इज फॉर एब्सेंस, एब्सेंस मतलब नॉन। नॉन ड्यूअलिज्म, ये इनके प्रोपोनेंट है आदि शंकरा। सो इसका टीनेट क्या है, कोर टीनेट, कि ब्रह्मा अलोन इज द अल्टीमेट रियल। द इंडिविजुअल सेल्फ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा। द फिनोमिनल वर्ल्ड इज एन इल्यूजरी अपीयरेंस। ये जो हमारा फिनोमिनल वर्ल्ड है ये बेसिकली माया है, और जो हमारा ब्रह्मा है यही एक अल्टीमेट रियलिटी है। ये हमारा अद्वैत वेदांता कहता है नॉन डुअलिज्म। विशिष्ट वेद, विशिष्ट अद्वैता वेदांता। विशिष्ट is qualified and A is for absence. Absence means non. And Dvaita is dualism. Qualified non-dualism. इनके प्रोपोनेंट है, इसके प्रोपोनेंट है रामानुजा। इनका कोटेनेंट क्या है, ब्रह्मा इज द सुप्रीम रियलिटी बट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीसिप्लिटी। ये देख रहे हैं आप, ये जो है ब्रह्मा इसको सुप्रीम रियलिटी मान रहे हैं, पर इसको कैरेक्टराइज किया इन्होंने कि बाय मल्टीप्लिसिटी। द वर्ल्ड एंड इंडिविजुअल सोल आर रियल एंड कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी ऑफ ब्रह्मा। ऑल डाइवर्सिटी इज सबस्यूम्ड इन एन अंडरलाइन यूनिटी। एंड थर्ड इज द्वैत वेदांता। द्वैता वेदांता दैट इज डुअलिज्म। इनके प्रोपोनेंट है माधवाचार्य। देयर इज अ फंडामेंटल plurality of reals, God, that is Vishnu, soul, matter, and eternally distinct and separate realities. Souls are dependent on God. So these are the 3 schools of Vedanta. Next, इनके जो है हमारा अद्वैता वेदांता का जो पाथ टू लिबरेशन है बेसिकली नॉलेज है, ज्ञान, एंड इनका जो है विशिष्ट अद्वैता का पार्ट टू लिबरेशन डिवोशन, दैट इज भक्ति, एंड द्वैता वेदांता का जो पार्ट टू लिबरेशन है भक्ति एंड गॉड्स ग्रेस। फर्दर स्कूल ऑफ वेदांतिक थॉट, बियॉन्ड द 3 प्राइमरी स्कूल सेवरल अदर ऑफर्ड नुआंस्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड, सोल एंड द वर्ल्ड. So first one is Shuddha Advaita, pure non-dualism. So A is for non-dualism, it is absence of dualism. Shuddha is pure. Shuddha is pure. A is for absence, that is non. Dvaita is dualism. Its proponent is Vallabhacharya. The world is real, but both God and individual self are same and not different. World real है, पर जो God है और individual self है वो same है, different नहीं है. Second is Dvaita Advaita, dual non-dual. Dualism A, non-dual dual. So its proponent is Nimbarka. There is both natural differences and non-difference between God and soul. God is the cause and soul is the effect. Third one is Achintya Bheda Abheda, inconceivable difference and non-difference. Proponent इसके हैं चैतन्य महाप्रभु. The individual self is simultaneously different and not different from Brahma. Brahma, a relationship that is beyond human logic. So it is beyond human logic. Bondage and liberation in Vedanta. The cause of bondage. Bondage का जो
कॉज है बेसिकली क्या है, अविद्या है, इग्नोरेंस है. दिस इज see how the ignorance related to the ultimate reality of the world or so the cause of bondage is avidya, ignorance. The path to liberation, vidya, knowledge. So the ignorance is avidya and the path to liberation is basically the knowledge that is known as vidya. So avidya is the ignorance of our true nature as Atma Brahma. It is the cause of individuality and the mistaken identification with the body, mind and ego. Result, this ignorance ties the individual self to samsara, the cycle of birth and death. ये जो ignorance है हमारा, यही जो है individual self को संसार से बांध देता है. See, tying the individual self to samsara. This is the cycle of birth and death. Avidya, ignorance of our true nature, Atma, Brahma. And this vidya is the knowledge of pure identity and realization that Atma is an ontological reality. When the unconditioned universal self reveals itself to the individual self, plurality is overcome and the mortal becomes immortal. This is moksha. So avidya is ignorance and vidya knowledge that leads to moksha. This is yoga philosophy. The synthesis practice meets philosophy. Yoga provides the practical discipline to purify the mind, making it to fit instrument to realize the philosophical truth of Vedanta. So it has four this practical discipline. Karma yoga, the path of action. Karma yoga, it is the active aspect of mind. कर्म से रिलेटेड है कि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा. दैट इज द पाथ ऑफ एक्शन, एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ माइंड. सेकंड इज भक्ति योगा, पाथ ऑफ डिवोशन, इमोशनल एस्पेक्ट. ये आपकी भक्ति से रिलेटेड है. दिस इज बेसिकली द इमोशनल एस्पेक्ट. एंड थर्ड वन इज राज योगा, द पाथ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. मिस्टिकल एस्पेक्ट encompasses अष्टांग योगा. And the Gyan Yoga, the path of knowledge, intellectual aspect, the philosophical path embodied by Vedanta. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Gyan Yoga. Unveiling the self, the five shells, Panch Koshas. This is very important part, Panch Koshas. So Vedanta and Yoga describe the human being as having five layers or sheet that cover the true self, the Atma. Liberation involves transcending these layers. पहला कौन सा कोशा है? First layer is Annamaya Kosha, the food shell, basically the physical body. And second is Pranamaya Kosha, the vital energy. It is related to the breath sheet. Third one is Manomaya Kosha. ये mind से related है, thought and emotion. Fourth is Vijnanamaya Kosha, the intellect sheath, intuition, will, wisdom. Fifth is Anandamaya Kosha, the bliss shed, the deepest layer and causal body. And this is the core part, the Atma, the true self. So these are the five Panch Koshas. इसी से related जो है वो NCF में जो है लेसन प्लान बनाने के लिए भी आया था. So key distinction for exam success, Yoga versus Vedanta. Now, the differentiation between Yoga and Vedanta. First, Yoga, its primary focus is on practical methodology. Practical methodology पे focus करता है, whereas ये जो है metaphysical inquiry पे focus करता है कि what is, क्या है, and ये है how to, कैसे. कोर प्रॉब्लम इसका क्या है? चित्ता वृत्ति. चित्ता में जो वृत्ति बेसिकली मॉडिफिकेशन को बोलते हैं कि जो चित्ता में मॉडिफिकेशन, जो फ्लक्चुएशन होता है इसके माइंड में, उसको हम वृत्ति बोलते हैं. एंड कोर प्रॉब्लम इसका वेदांता का अविद्या, इग्नोरेंस ऑफ द ट्रू सेल्फ नेचर. गोल इसका केवल्या है,
अल्टीमेट एम ऑफ लिबरेशन इज केवल्या, एंड इसका मोक्षा, वेदांता का मोक्षा। देन की टेक्स्ट इसका पतंजलि योग सूत्र है, और इसका की टेक्स्ट है उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र, भगवद गीता। Philosophical basis heavily draws from Sankhya dualism, Purusha and Prakriti, monism, qualified monism or dualism depending on the school. So योगा बेसिकली हमारा जो है एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और सांख्य हमारी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, जिसका योगा हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। वेदांता हमारी मेटाफिजिकल इंक्वायरी है, जो डील करती है व्हाट इज से। योगा चित्तावृत्ति, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं उससे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी कलेशाज होते हैं, ठीक है, कलेशाज से जो है 5 टाइप्स ऑफ कलेशा की बात की गई है, जिसमें डिस्ट्रैक्शन ऑफ चित्ता है, तो उससे रिलेटेड है। और इसमें जो कोर प्रॉब्लम है वो इग्नोरेंस है, कि जो अपने जो सेल्फ है वो अपना जो है संसार से कनेक्शन जुटाइज करता है, और उसको अविद्या से है। और जो गोल हमारा बेसिकली इसका मोक्षा है, इसका केवल्या है, और इसका टेक्स्ट जो है योगा सूत्रास एंड उपनिषद, ब्रह्मा सूत्रास, भगवद गीता। योगा प्रिपेयर्स द माइंड एंड बॉडी फॉर द प्रोफाइंड सेल्फ इंक्वायरी ऑफ वेदांता। बेसिकली योगा हेल्प्स इन to prepare the mind and body to profound and self inquiry of Vedanta. So thank you so much